Hello everyone. In this lecture, we will discuss about female reproductive system. Female reproductive system, it is a system in which involve all the organs which is useful for the reproduction. Okay. Generally, you can say the organ which are involved for the production of offspring or for the production of child. So first we will see what are the function of female reproductive system. Okay. So function में everyone I think know कि जो reproductive system है उसका पहला function होता है for childbirth. Okay, for childbirth. So it means to produce offspring, है ना. दूसरा जो function होता है it provide the place of fertilization. Okay, place of fertilization. It provide the space for the growth of the fetus. Okay. This female reproductive system is divided in two parts, external genitalia and internal genitalia. Okay, external genitalia तो नाम से ही आप समझो कि externally the organ which are present externally, it means you can see without using any instrument. बाहर से ही आप जो part देख सकते हो that is external genitalia. And internal genitalia, it present in internal area, so we can't see without use or without using any type of instrument. Means for visualization of the internal organ we always require some type of scopy. Okay, so now we will move on the parts of the external genitalia. In that, the first part, it is known as mons pubis. Okay, mons pubis, it is the anterior part which is present in most anterior area. Most means सबसे आगे जो part होता है that is mons pubis, and this mons pubis contain fatty tissue, subcutaneous tissue and hair follicles. Okay, जो mons pubis है it is a something you can say the triangular shape. ट्राइंगुलर शेप का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इट इज नोन एज मोन्स प्यूबिस एंड इट कंटेन हेयर फॉलिकल्स ऑल्सो. ओके, अनदर जो पार्ट है दैट इज लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा इट इज अ टू थिक फोल्डिंग. ओके, यू कैन से द कवरिंग, मतलब एक्सटर्नली जो टू कवर होती है इट इज अ टाइप ऑफ थिक स्किन फोल्ड्स. जो टू स्किन फोल्ड्स होते हैं बट it is thick in nature. Okay, and it is covered in both side. ठीक है, right as well as left. This labia majora is contain sebaceous gland, sweat glands and hair follicles also. Okay, this labia majora is homologous with scrotum. ठीक है, homologous का मतलब है जिसका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है. Structure same but function different. Second part that is labia minora. Labia minora is two small skin fold and present just beneath in the labia majora. Labia majora के just अंदर छोटे छोटे दो small folds होते हैं, skin folds होते हैं जिसे labia minora कहते हैं. This labia minora is connected in upper area and it joined at the level of clitoris. ठीक है, लेबिया मेनोरा ऊपर जाके क्लाइटोरिस के पास फ्यूज होता है और नीचे की तरफ वो आके फॉर्चेट बनाता है. मतलब अगर लेबिया माइनोरा है तो वो ऐसे इस शेप में रहेगा, तो ऊपर वो दोनों ज्वाइंट रहेंगे एट द लेवल ऑफ क्लाइटोरिस, एट द पॉइंट ऑफ क्लाइटोरिस, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये स्प्रेड रहेगा एंड दिस लोअर एरिया इज मेक फॉर्चेट. ओके, लोअर एरिया में फॉर्चेट फॉर्म करेगा. अपर पार्ट में जहां पे लेबिया माइनोरा कनेक्ट होता है, जहां पे हमने बताया क्लाइटोरिस के पास जहां वो जाके कनेक्ट होता है उस पोर्शन को फ्रेनुलम कहते हैं. ठीक है, एंटीरियरली जहां पे दोनों ज्वाइंट होंगे अपर एरिया में इट इज नोन एज फ्रेनुलम. अनदर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दैट इज क्लाइटोरिस. Clitoris is about 2 to 2.5 centimeter in length. Okay, and it have highly nerve supply. Okay, क्लाइटोरिस क्या है, बहुत सेंसिटिव होता है और वहां पे सबसे ज्यादा नर्व सेंडिंग्स होते हैं और सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई क्लाइटोरिस में होता है. सो इट इज हाईली सेंसिटिव एरिया एंड दिस क्लाइटोरिस
हैव इरेक्टाइल टिश्यू, मीन्स इरेक्टाइल इन नेचर, थोड़ा सा अगर उसे टच किया तो वो स्टिमुलेट होके इरेक्ट हो जाएगा. सो इट हैव हाईली इरेक्टाइल टिश्यू. एंड दिस क्लाइटोरिस इज ऑल्सो एनालॉगस with the glans penis of the male. Okay, analogous with the glans penis. Analogous का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है. ठीक है. सो इन द फीमेल ऑल्सो, मेल ऑल्सो, द ग्लैंस पेनिस इज ऑल्सो इरेक्टाइल टिश्यू. ओके, सो इट इज एनालॉगस विद द ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल. अब क्लाइटोरिस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज दी वेस्टिब्यूल. ओके, हमने अभी लेबिया मेजोरा देखा, लेबिया माइनोरा देखा. अब लेबिया मेजोरा 2 स्किन फोल्ड्स थे, मेजोरा उसके अंदर के छोटे फोल्ड्स थे. उसके अंदर जो जितनी भी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, फ्रॉम अपर टू लोअर एरिया, ठीक है, तो जितनी भी ओपनिंग प्रेजेंट है वो पूरी ओपनिंग वाला एरिया इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स. ओके, वेस्टिब्यूल्स मीन्स ऑल द पोर्शन or part which contain all the opening of the external genitalia, it is called vestibules. Okay, पूरा जो पोर्शन है अंदर का वो वेस्टिब्यूल कहलाता है. सो इफ वी विल टेल एंटीरियरली इट इज बाउंड विद द क्लाइटोरिस एंड यू कैन से पोस्टीरियरली, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो जो फॉर्चेट वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर एरिया में आ जाता है. सो इन पोस्टीरियरली इट इज एंड अप विद फॉर्चेट. ओके, अब in that vestibule total 4 openings are there. Okay, mainly there are total 4 openings. Okay, in that the first opening is urethral opening. Okay, urethral opening is useful to eliminate the urine. Okay, second opening is the vaginal opening. Okay, vaginal opening, or you can say vulva. Okay, and this vulva is useful for the excretion and also used for sexual intercourse and also useful for the secretion of bleeding. Okay, next opening is opening of Bartholin duct. Okay, opening of Bartholin, you can say Bartholin gland. जो वेजाइना है उसके दोनों साइड में छोटे छोटे पी शेप के पियर शेप के जो है वो ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. और वही ग्लैंड के जो डक्ट्स है वो वेजाइना के दोनों तरफ बाहर की तरफ आके खुलते हैं. ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये एक येलो कलर का सिक्रीशन करता है. ओके, सिक्रीशन करता है एंड दिस सिक्रीशन इज एल्केलिन इन नेचर. मतलब ये जो वेजाइना की दोनों तरफ इसकी ओपनिंग है तो जो भी सिक्रीशन होगा वो वेजाइना में जाएगा. इसका जो नेचर है वो एल्केलिन नेचर का होता है. और दिस सिक्रीशन इज यूजफुल फॉर द इंटरकोर्स. इट इज ऑल्सो फॉर लुब्रिकेशन एज वेल एज फॉर द यू कैन से फॉर यूजफुल फॉर द सर्वाइविंग द स्पर्म. स्पर्म जो है वो एल्कलिन एनवायरमेंट में अच्छे से ग्रो करता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता. तो जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये सिक्रेशन करती है और ये सिक्रेशन का जो यूज है वो लुब्रिकेशन के लिए एज वेल एज फॉर दी स्पर्म. नेक्स्ट ओपनिंग इज स्कैंस ग्लैंड ओपनिंग. स्कैन ग्लैंड ओपनिंग जो है वो यूरेथ्रल ओपनिंग के पैरेलल दोनों साइड में प्रेजेंट होती है. और ये जो स्कैंस ग्लैंड ओपनिंग है यूरेथ्रल के पैरेलल के साथ साथ ये जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उस प्रोस्टेट ग्लैंड का एनालॉगस है. ओके, एनालॉगस का मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सेम. तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीशंस करता है, सीमेन को थिक बनाता है, सम सिक्रीशंस करता है. तो स्कैंस ग्लैंड भी सम टाइप ऑफ सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है. Next, I will move on internal genitalia. In internal genitalia, 4 organs will come. In that, the first organ is vagina, second uterus, third fallopian tube, and fourth is ovary. Vagina, it is a fibromuscular organ, or you can say it is a hollow organ. ठीक है, hollow organ है जो fibrous और muscle से मिलके बना है. And इसकी जो length है, it is about 7 centimeter in anterior एंड 9 सेंटीमीटर इन पोस्टीरियर. मतलब अगर फ्रंट से देखें तो फ्रंट से एज कंपैरिजन ये बैक साइड ये क्या है, छोटा है. तो फ्रंट में 7 सेंटीमीटर और बैक साइड से 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. एंड इट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. इट कंटेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू इन देयर इनर लाइनिंग.
इनर लाइनिंग में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। एंड विजाइना का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है एंड इसका जो पीएच है दैट इज 3.8 to 4.5 होता है। प्यूबर्टी मतलब 12 या 13 साल के पहले इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल रहेगा, ना एसिडिक ना अल्कलिन। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इसका जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा और मेनोपॉज के बाद मींस 45 या 50 ईयर्स के बाद इसका जो नेचर है वो एल्कलिन नेचर हो जाएगा। इसकी जो एसिडिक नेचर है जो प्यूबर्टी के एज में रहती है वो डॉडरलिन करके बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ग्लाइकोजन को कंज्यूम करती है और जैसे ही ये ग्लाइकोजन को कंज्यूम करेंगी वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही जो वेजाइना का नेचर है वो एसिडिक बना रहता है। विजाइना के अपर पार्ट में जहां से वो सर्विक्स के पास से अटैच होती है वहां पे 4 फॉर्निक्स पाए जाते हैं जो सर्विक्स से जुड़े होते हैं और ये 4 फॉर्निक्स 1 एंटीरियर 1 पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल फॉर्निक्स होते हैं जो कि ओपन और क्लोज होते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। विजाइना का फंक्शन, द फंक्शन ऑफ विजाइना इज ब्लीडिंग और यू कैन से मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो, देन चाइल्ड बर्थ एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये तीनों इसके फंक्शन है। नेक्स्ट ऑर्गन इज यूट्रस। यूट्रस इज hollow muscular pear shaped organ and the weight of this uterus is 60 gram in non-pregnant stage and during pregnancy the weight of the uterus is about 900 to 1000 gram. The length of the uterus is about 7.5 centimeter and height is 5 centimeter and width is about 2.5 centimeter. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेंथ विड्थ और हाइट भी बढ़ जाते हैं तो इस वजह से इसका जो लेंथ है प्रेग्नेंट वाली स्टेज में इट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर इन लेंथ। यूट्रस फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से मिलके बना होता है। इसका जो बॉडी में पोजीशन है, पोजीशन आप ये कह सकते हो कि किस पोजीशन में ये सिचुएटेड होता है, बॉडी में किस एरिया में सिचुएटेड होता है। तो इसका जो पोजीशन है दैट इज एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्जन मीन्स ये वेजाइना से 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करता है और एंटी फ्लेक्शन मीन्स बॉडी में अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ये एंटी फ्लेक्शन पोजीशन में होगा। यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं और 1 मोर पार्ट इज कॉर्नुआ। सो इन 4 पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज फंडस। फंडस डोम शेप्ड एरिया है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है एंड सेकेंड पार्ट इज कॉर्नुआ। कॉर्नुआ फ्रॉम नेम यू कैन सी कॉर्नुआ मीन्स द थिंग विच इज प्रेजेंट इन कॉर्नर्स। तो जहां से फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड होती हैं उस पार्ट को कॉर्नुआ बोलते हैं और वहीं से ही यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। और यू कैन से जैसे हार्ट का एवी नोड रिस्पॉन्सिबल है इम्पल्स जनरेट करने के लिए तो यूट्रस का कॉर्नुआ रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी ऑफ फंडस। बॉडी ऑफ फंडस सबसे लार्ज एरिया है और इसकी जो लेंथ है इट इज अबाउट 3.5 सेंटीमीटर। फंडस का लेंथ 1.5 सेंटीमीटर होता है और बॉडी का जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इस बॉडी में ही जो इम्प्लांटेशन है वो इम्प्लांटेशन होता है और बेबी ग्रो करता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज इस्थमस। इस्थमस सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि बॉडी और सर्विक्स के बीच में पाया जाता है। इसकी जो लेंथ है दैट इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड द लास्ट पार्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स सबसे लास्ट पार्ट है जिसकी ओपनिंग विजाइना में होती है, मतलब ये बाहर की तरह ओपन होके विजाइना में ही खुलता है। इसमें 2 ओपनिंग्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपनिंग। तो इंटरनल ओपनिंग तो यूट्रस में है, यूट्रस के अंदर है और जो सेकेंड ओपनिंग है जो बाहर की तरफ खुलती है वो वेजाइना में ओपन होगा। यूट्रस के 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज आउटर लेयर और विच इज कनेक्टेड टू पेरिटोनियल लेयर ऑफ और पेरिटोनियल मसल्स। सेकेंड जो लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम। Myometrium is middle layer और from name myo means muscles तो it contain muscular layer। इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसका स्ट्रक्चर फिगर ऑफ 8 के रूप में मसल्स अवेलेबल है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये फिगर ऑफ 8 मसल स्ट्रक्चर ही कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। मायोमेट्रियम लेयर में ही ब्लड सप्लाई है, मींस आप ये कह सकते हो कि आर्टरी और ब्लड वेसल्स दोनों मायोमेट्रियम लेयर में ही पाए जाते हैं। तो जैसे ड्यूरिंग डिलीवरी जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बेबी की डिलीवरी होगी और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो इंजेक्शन मिथार्जिन दिया जाता है एंटीरियर शोल्डर के डिलीवरी के बाद।
तो मिथाजिन क्या करता है, इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पे जो आर्टरी है वो आर्टरी कंप्रेस होगी और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो इस फिगर ऑफ 8 मसल्स की वजह से ही जो पीपीएच है वो प्रिवेंट होता है, ताकि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्लीडिंग स्टॉप हो आफ्टर द डिलीवरी। फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज, हाँ जैसे आपने देखा मायोमेट्रियम लेयर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो डिलीवरी। So that is the second layer. First is perimetrium, second myometrium, and third layer is endometrium layer. Endometrium layer, endo means inner layer. इंडोमेट्रियम लेयर की 2 लेयर्स होती हैं, एक तो बसल लेयर जिसे हम परमानेंट लेयर बोलते हैं और दूसरी फंक्शनल लेयर। बसल लेयर जो परमानेंट लेयर होती है उसका कोई भी चेंजेस नहीं होता, लेकिन जो फंक्शनल लेयर है वो फंक्शनल लेयर मैच्योरेशन के टाइम में जनरेट होती है और जैसे ही ओवुलेशन खत्म हो जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये फंक्शनल लेयर ब्लीडिंग के साथ जो कैपिलरीज है वो बाहर आ जाती है। तो इनर लेयर और यू कैन से इंडोमेट्रियम की 2 लेयर है, बसल लेयर और फंक्शनल लेयर। बसल लेयर हमेशा प्रेजेंट होती है और जो फंक्शनल लेयर है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बनती है और ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज फॉर ग्रोइंग द बेबी, मतलब बेबी जो बड़ा होता है, डेवलपमेंट होगा बेबी का वो यूट्रस में ही होगा। देन फंक्शनल लेयर का डेवलपमेंट होगा जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं पर मंथ। सो ये यूट्रस के फंक्शंस हैं। यूट्रस के मिडिल लेयर को लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ फिगर ऑफ 8 मसल स्ट्रक्चर की वजह से। नेक्स्ट पार्ट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज सल्फिंजीज, ओविडक्ट एंड मुलेरियन डक्ट। फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक लंबी ट्यूब होती है, इसकी जो लेंथ है इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर और अगर हम इंच में बोले तो 4 इंचेस। एंड इन द फैलोपियन ट्यूब देर आर 4 पार्ट्स। आप ये बोल सकते हो कि जो लंबी ट्यूब है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग नेम्स हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज इंट्रामोरल, इंटरस्टिशियल और इंट्रामोरल। Interstitial part is the smallest part of the fallopian tube and it is about 1.25 centimeter in length and it is open, or you can say it is present in the wall of uterus. Uterus के corner में ही और uterus के अंदर ही इसका जो part है वो present होता है। इसका जो diameter है it is about 1 mm. Next part is isthmus. Isthmus is the second part of the fallopian tube and the length of isthmus is about 2.5 centimeter in length. And the third part that is ampulla. Ampulla is the longest part and it is about 5 centimeter in length. Ampulla में ही fertilization होता है और एम्पुला में ही ओवम स्पर्म मिलके 2 सेल्स बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ये जो एम्पुला है वो बहुत लार्जेस्ट एरिया है, लॉन्गेस्ट एरिया है, इसलिए जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दी एम्पुला ओनली। नेक्स्ट पार्ट इज दी infundibulum. Infundibulum is the end stage और end part of the fallopian tube. इसमें finger like projections होती हैं और 25 to 30 फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होती है और इसका जो डाया है इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होगा वो ओवरी से जाके कनेक्ट होगा और वहीं से वो ओवम को लेता है। ये आप बोल सकते हो कि जो ओवम रिलीज होगा वो उसी स्ट्रक्चर की वजह से फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये फैलोपियन ट्यूब जो है इसका जो वर्क है, फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एम्पुला वाले पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है ये ओवम को कैच करता है या ओवम को लेके फर्टिलाइजेशन वाले प्लेस में लेके आता है। नेक्स्ट फंक्शन है ये स्पर्म को पाथवे प्रोवाइड करता है। यूट्रस से जैसे स्पर्म आएगा तो फैलोपियन ट्यूब में ही, मतलब फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट उसको एम्पुला तक लेके आएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। फैलोपियन ट्यूब में जो इनर लाइनिंग है उसमें सीलिया प्रेजेंट होती है और ये सीलिया ही स्पर्म और ओवम को मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। फैलोपियन ट्यूब में टर्टोरियस स्ट्रक्चर पाया जाता है। टर्टोरियस का मतलब होता है जिगजैग स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस जिगजैग स्ट्रक्चर की वजह से ही ओवम और स्पर्म ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन इज ओवरी। ओवरी इज प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ यूट्रस, राइट एज वेल एज लेफ्ट। यूट्रस के दोनों तरफ ओवरी प्रेजेंट होती है और इसका जो शेप है ऑलमंड शेप का होता है। ओवरी की जो लेंथ है इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसका जो विड्थ है 1 सेंटीमीटर होता है। ओवरी में बहुत सारे जर्म सेल और फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये जर्म सेल्स क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो अप होके एंड ओवम रिलीज करते हैं। ओवरी का जो फंक्शन है ये फंक्शन ही है कि ये ओवम को रिलीज करता है और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ओवरी के 2 पार्ट्स हैं, आउटर कॉर्टेक्स और मिडिल मेडुला। जो भी ब्लड सप्लाई है, जितने भी आर्टरी ब्लड वेसल्स पास होती हैं वो मेडुला से पास होती हैं, और जो कॉर्टेक्स है उसमें जर्मिनल सेल्स पाए जाते हैं जहां से हार्मोन सिक्रीट होता है, और फॉलिकल्स भी पाया जाता है। और ये हर फॉलिकल्स हर मंथ एक एक फॉलिकल्स डेवलप होगी, ग्रो करेगी और उसमें से ओवम को रिलीज करती है। So this is all about the female reproductive system.